Hello students and welcome back again to our video tutorial. And today in this lecture we are going to start about glandular epithelium. हम पढ़ रहे थे about epithelial tissue. पहले हमने पढ़ा about simple epithelial tissue और बाद में हमने पढ़ा about compound epithelial tissue. अब epithelial tissue में दो पार्ट और बचे हैं कि कुछ epithelial tissue modify होके secretion करना शुरू कर देते हैं, उनको बोलते हैं glands. Glands क्या होती हैं? एंड क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड विद देयर एग्जांपल, जो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे. एंड टुमारो वी विल बी लर्निंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सेलुलर जंक्शंस प्रेजेंट विद इन द एपिथेलियल टिश्यू एंड देयर वी विल बी कंप्लीटिंग आवर एपिथेलियल टिश्यू. उसके बाद हम असाइनमेंट वगैरह एक दो सॉल्व कर लेंगे. सो टाइटल ऑफ टुडेज लेक्चर वुड बी ग्लैंडुलर एपिथेलियम. द टाइटल ऑफ टुडेज लेक्चर इट वुड बी ग्लैंडुलर एपिथेलियम. दोज एपिथेलियल टिश्यू which act as glands. आपने पढ़ लिया सिंपल एपिथेलियम के बारे में, कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लेयर्स. आज पढ़ेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में. सो द फर्स्ट कंसेप्ट कम, what is your knowledge about glands and what is your understanding about glands? What is your concept about gland and what is definition of gland? In the simplest word, I can say a cell or a group of cell. Gland is either a cell or these are a group of cell which secretes chemical substances. A cell माने यूनिसेलुलर भी ग्लैंड हो सकती है और group of cells which secretes chemical substances. These chemical substances could be anything. It could be your sweat, it could be milk, it could be enzymes, it could be hormones, X, Y, Z. So a cell or group of cells which secrete chemical substances, that is what we call gland. In the simplest word, gland can be defined as a cell or a group of cells. Any cell which is secreting a chemical substance is a gland. Is that clear? Here it is worth mentioning that all the glands, all the secretory cells, they are modified epithelium. All the glands are composed of epithelial tissue. All glands are composed of epithelial tissue. See, अगर आप मुझे कहने लगे सर हमने ब्लड में एक सेल पढ़ा था बेसोफिल और वो भी केमिकल सब्सटेंस रिलीज कर रहा था, क्या वो एक ग्लैंड है? आंसर वुड बी नो. बेसोफिल इज अ पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ग्लैंड जो होती है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है. ऑल द ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. ऑल द ग्लैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. सो अ एपिथेलियल सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल व्हिच सीक्रेट केमिकल सब्सटेंसेस इज अ ग्लैंड. Epithelial cell or a group of cell which secretes chemical substance is a gland. जब ग्लैंड की कौन सी एपिथेलियल सेल ग्लैंडुलर हो सकती है? स्क्वेमस के अलावा कोई भी हो सकती है. स्क्वेमस और सोलो स्ट्रेटिफाइड के अलावा कोई भी. दो ही तो बची, सम कॉलमनर सेल और क्यूबोइडल सेल. They get specialized for secretion. Some columnar cells or cuboidal cell get specialized for secretion. Is that clear? So definition को एक बार थोड़ा और modify कर देता हूँ. These are the columnar or cuboidal epithelial cell or group of cell which are specialized for secretion, and such type of epithelium is known as glandular epithelium. Such type of epithelium is known as glandular epithelium. When we talk about origin, जैसे epithelial tissue का origin all the three germinal layer से होता है, वैसे ही glands का origin भी all the three germinal layer से होता है. All the three germinal layer, ectoderm, mesoderm and endoderm, they all are compatible or capable to give rise to such cells which are secretory in nature. Is that clear? ये तो हो गया कंसेप्ट ऑफ ग्लैंड. ग्लैंड क्या होती है? एक सिक्रेटरी सेल होती है, एक एपिथेलियल सिक्रेटरी सेल होती है. अब हमें आगे लेक्चर में पढ़ते जाना है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स.
हम ग्लैंड्स को क्लासिफाई करेंगे। पहला जो क्लासिफिकेशन होगा वो बताऊंगा मेथड ऑफ सिक्रेशन पर, कि डक्ट के थ्रू अपने सिक्रेशन भेजती है या बिना डक्ट के भेजती है या फिर दोनों तरह से भेजती है। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स एंड फर्स्ट टाइप ऑफ ग्लैंड विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिक्रेशन, कि वो अपने सिक्रेशन वगैरह को किस तरह से टारगेट तक भेजती, जो टारगेट साइड जो भी है वहां तक उसके सिक्रेशन कैसे जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स। और जो पहला क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं दैट वुड बी मेनली बेस्ड अपॉन द मेथड ऑफ सिक्रेशन, बेस्ड अपॉन मेथड ऑफ सिक्रेशन। अब ये जो ये वाला है ना, ये आप क्लास 10th में पढ़ लेते हैं, जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे वहां पर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, तो वहां पे ये वाला पार्ट तो पढ़ा ही देते हैं। ऑन द मेथड ऑफ सिक्रेशन ग्लैंड कुड बी ऑफ 3 टाइप। दे कुड बी exocrine gland, these are the gland with ducts. They could be endocrine gland, these are the gland without ducts, and they could be heterocrine gland. These are the one which some secretion is going via duct and some secretion is going without duct. तो exocrine, अगर मैं basic concept की बात करूं, these are the glands with duct. एंडोक्राइन की बात करूं, बेसिक कंसेप्ट, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड। एंड अगर मैं हेट्रोक्राइन की बात करूं, दीज आर द वन विच आर मिक्स्ड ग्लैंड। अब थोड़ी सी डेफिनेशन और उसके एग्जांपल मेंशन कर लेता हूं, फिर दूसरा एग्जांपल में डिस्कस करूंगा। अगर मैं एक्सोक्राइन ग्लैंड को डिस्कस करूं, दे आर सिक्रेटेड, दे आर द वन विच हैव सिक्रेटेड डक्ट। इन दीज ग्लैंड secretory duct is present. These are the glands which have a secretory duct. तो ये अपने सिक्रेशन वगैरह जो है सिक्रेटरी सेल से टारगेट साइट तक लेके जाती है विद द हेल्प ऑफ दीज डक्ट। और मैंने बताया भी आपका एपिथेलियल टिश्यू में किस डक्ट में कैसी सेल्स होती हैं। आई रिपीट, दे कैरी देयर सिक्रेशन टू द टारगेट साइट विद द हेल्प ऑफ डक्ट। अब एग्जाम्पल्स आपको याद कर लेने हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल्स। देखो ऐसी कोई भी ग्लैंड अगर आपको नजर आए जो सिक्रेटरी डक्ट से सिक्रेशन भेज रही है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। वो चाहे आपकी ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड हो, वो चाहे आपकी मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड हो, वो चाहे आपकी एंजाइम सिक्रेटिंग ग्लैंड हो, वो चाहे आपकी ईयर वैक्स वाली ग्लैंड हो, वो चाहे आपकी स्लाइवा वाली ग्लैंड हो, वो चाहे आपकी म्यूकस वाली ग्लैंड हो। तो दीज आर द वन व्हाट सिक्रेट्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या क्या सिक्रेट करती हैं? दे कैन सिक्रेट म्यूकस, सलाइवा, earwax, I told you about enzymes, I told you about milk, etc. ये पियर ग्लैंड भी आप लिख सकते हैं। तो म्यूकस, सलाइवा, earwax, पियर ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, ऑयल है क्या यहाँ पर? These all glands are exocrine glands. Sweat glands are exocrine gland. No pun in telling. एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो दीज आर द वन जिसमें सिक्रेटरी डक्ट नहीं होता है और मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन रिलीज करती है। इनके जो सिक्रेशंस है वो डायरेक्टली पोर होते हैं ब्लड में। सिक्रेशंस आर डायरेक्टली पोर्ड इनटू ब्लड एंड व्हाई इट इज सो? as duct are absent and endocrine mainly secretes hormone। तो जितनी भी हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड है उनको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, दे सिक्रेट्स हार्मोन। और जो आपकी हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है उसके अंदर there is some part which is there certain secretion they are carried via duct and other secretion they are directly poured into blood। I can say duct से जा रहे तो वो एक्सोक्राइन होती हैं और ब्लड में पोर हो रहे तो वो एंडोक्राइन भी होती है। तो उसके कुछ टिश्यू एक्सोक्राइन फंक्शन कर रहे होते हैं, कुछ टिश्यू एंडोक्राइन फंक्शन कर रहे होते हैं, इसलिए उनको हेट्रोक्राइन कहा है।
दो क्लासिकल एग्जाम्पल हेटोक्राइन ग्लैंड के, पहला होता है पेनक्रियाज। अब मैं आपको बता दूं, जो पेनक्रिया होता है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। जो पेनक्रिएटिक एसिनाई आपने पढ़ा है, पेनक्रिएटिक एसिनाई, ये वो पार्ट होता है बच्चे जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है। ये क्या बनाता है? ये पेनक्रिएटिक जूस बनाता है, ये एंजाइम्स बनाता है। और ये एक्सोक्राइन पार्ट है, तो एंजाइम्स वगैरह डाइजेस्टिव जूस एलिमेंट्री कैनाल या इंटेस्टाइन में कैसे आएगा? विद द हेल्प ऑफ गट। और उसका दूसरा पार्ट होता है जिनको बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहंस। स्पेशल सेल होती हैं अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा टाइप, और इनको बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहंस। और ये अलग अलग तरह के हार्मोन बनाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा बीटा आइलेट ऑफ लैंगरहंस इंसुलिन बनाती है, अल्फा आइलेट ऑफ लैंगरहंस ग्लूकागोन बनाती है। तो अभी यहाँ पर आपको आइलेट ऑफ लैंगरहंस के फंक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी ये याद रखना है कि पेनक्रिया कैसी ग्लैंड है। पेनक्रिया इज ए व्हाट काइंड ऑफ ग्लैंड है पेनक्रियाज? यू विल आंसर पेनक्रियाज इज ए हेटोक्राइन ग्लैंड। जो दूसरा एग्जांपल याद रखेंगे वो होगा गोनेड्स। गोनेड्स कहते हैं बेटे टेस्टिस एंड ओवरीज को। गोनेड्स कहते हैं टेस्टिस एंड ओवरीज को। तो गोनेड्स भी आपकी हेटोक्राइन ग्लैंड होती है। भाई टेस्टिस में कुछ पार्ट होता है जो स्पर्म बनाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और कुछ पार्ट होता है जो हार्मोन बनाते हैं, लेडिक सेल। हायर क्लासिकल क्लास 12 में जाके ये पढ़ोगे, 10th में भी पढ़ लेते हैं कुछ बच्चे। ओवरीज में भी सिमिलरली कुछ पार्ट होता है जो सेकेंडरी oocyte और ओवम बनाता है, फॉलिकल्स वगैरह, और कुछ पार्ट होता है जो आपको एस्ट्रोजन वगैरह बनाते हैं। तो ये दोनों जो ग्लैंड होती है, फर्स्ट इज गोनेड एंड सेकेंड इज पेनक्रियाज। ये दोनों ग्लैंड कैसी हो जाती है बेटा? हेटोक्राइन ग्लैंड। ये पहला क्लासिफिकेशन होता है डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ सिक्रेशन, कि उनकी जो सिक्रेशन है वो टारगेट साइट तक ब्लड के थ्रू जा रहे हैं डायरेक्टली, या फिर डक्ट से जा रहे हैं, या मिक्स होके जा रहे हैं। कुछ सिक्रेशन ब्लड के थ्रू जा रहे हैं, कुछ सिक्रेशन डक्ट से जा रहे हैं। तो ये हो गया पहला क्लासिफिकेशन, दैट इज एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेटोक्राइन ग्लैंड। और यहाँ तक बच्चे क्लास 10th में पढ़ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगा आपने ज्यादा कुछ यहाँ पर नया चीज सीखा होगा, और सीखा है तो दैट इज वेरी गुड। पर अगला जो क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ शायद वो ना पढ़ा हो आपने, वो इसलिए प्लीज डू फोकस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वाज बेस्ड अपॉन द मेथड ऑफ सिक्रेशन, सेकंड पढ़ेंगे बेस्ड अपॉन द नेचर एंड मोड ऑफ सिक्रेशन, कि उनका जो नेचर होता है, ये मोड ऑफ सिक्रेशन जो होता है वो किस तरह से होता है। कि भाई सिक्रेटरी सेल का से सिक्रेशन डिफ्यूज होकर बाहर निकल रहे हैं, या सिक्रेटरी सेल का कुछ पार्ट लॉस्ट हो जाता है एज सिक्रेशन, या फिर कंप्लीट सिक्रेटरी सेल ही लॉस्ट हो जाती है सिक्रेशन। अभी ये तीन टाइप के आपको और बता देता हूँ ग्लैंड्स। पहला क्लासिफिकेशन इज कंप्लीटेड। सेकंड क्लासिफिकेशन, डिपेंडिंग अपॉन नेचर और मोड ऑफ सिक्रेशन, कि भाई सेल का जो सिक्रेशन है वो किस तरीके से रिलीज, सिक्रेट सेल का जो भी केमिकल्स है वो किस तरह से सिक्रेट हो रहे हैं। दो तीन अलग अलग तरीके बताऊंगा कि भाई क्या तो सिंपली डिफ्यूज हो जाते हैं, या सेल का कुछ पार्ट लॉस्ट हो जाता है सिक्रेशन, या कंप्लीट सेल ही लॉस्ट हो जाता है सिक्रेशन। तो लेट अस नाउ डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड मोड ऑफ सिक्रेशन। जो पहली टाइप की ग्लैंड यहाँ बताऊंगा मैं, दैट वुड बी मीरोक्राइन ग्लैंड, और इन्हीं का दूसरा नाम होता है एक्राइन ग्लैंड। मीरोक्राइन और एक्राइन ग्लैंड, राइट। दीज आर द वन जिनसे सिंपल डिफ्यूजन से ही सिक्रेशन चला जाएगा, अभी मैं बता दूंगा। सेकंड जो बताऊंगा दैट वुड बी एपोक्राइन ग्लैंड। एपो माने एपिकल पार्ट, तो इसका एपिकल पार्ट जो है वो एज ए सिक्रेशन डिस्चार्ज होगा। और जो थर्ड बताऊंगा आपको दैट वुड बी होलोक्राइन ग्लैंड। होलो मतलब कंप्लीट, तो कंप्लीट सिक्रेटरी सेल ही लूज हो जाएगी एज सिक्रेशन। वन बाय वन तीनों डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कशन शुरू करते हैं बेटा मीरोक्राइन ग्लैंड का। जो मीरोक्राइन ग्लैंड होती है उसमें जो सिक्रेशन है वो सिंपल डिफ्यूजन से डिस्चार्ज होता है। व्हाट आई एम टेलिंग यू, सिक्रेशन इज डिस्चार्ज by process of simple diffusion, that is no part of the cell is lost as secretion, that is इसका मतलब ये हुआ that no loss of cell or their part is there, that is no loss
ऑफ सेल और देयर पार्ट। एक डायग्राम से समझा देता हूँ थोड़ा सा आपको कि भाई इस वाले जो सिक्रेशन होता है, जो मीरोकाइन सिक्रेशन होता है, उसके अंदर होता क्या है। लेट्स सी, यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ। बेसमेंट मेम्ब्रेन बताने की जरूरत नहीं है, और ये आपके पास ना इंटैक्ट सेल है। इन सेल के अंदर कुछ सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होंगे। मैं बताऊंगा जाइमोजेंस ग्रेन्यूल क्या होते हैं। जो भी सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लेट्स से दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ सेल, द न्यूक्लियर वैक्यूल्स, और साथ में ये सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स हैं। तो पहले सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स यहाँ पर है, लेट्स से these cells are having secretory granules, ऐसे इसमें भी होंगे। एंड लेटर ऑन these secretory granules are discharged by the process of simple diffusion. This is the secretory part, secretion here, and the cell is intact, the cell remain intact. तो वो ग्लैंड्स जिनके अंदर जो सिक्रेटरी पार्ट होता है वो बाय सिंपल डिफ्यूजन डिस्चार्ज हो जाता है, और सेल्स के अंदर सेल का कोई भी पार्ट लॉस नहीं होता है। ऐसी टाइप की ग्लैंड को बोलते हैं मीरोक्राइन ग्लैंड। ऐसी टाइप की ग्लैंड को बोलते हैं मीरोक्राइन ग्लैंड। सो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रेशन या नेचर ऑफ सिक्रेशन, इफ द सिक्रेशन इज लॉस्ट बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन and there is no loss in the cell or its any part, we call such type of gland as merocrine gland. It's worth mentioning here, most of our sweat glands are merocrine gland, salivary glands are merocrine gland. Example mention कर देता हूँ मैं यहाँ पर, example यहाँ mention कर देता हूँ, ठीक है। Most of sweat gland, मैं मोस्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ, मतलब एक दो स्वेट ग्लैंड ऐसी भी बताऊंगा जो नहीं होती है मीरोक्राइन। कुछ स्वेट ग्लैंड ऐसी भी बताऊंगा मैं आपको जो मीरोक्राइन नहीं होती है। तो अभी मोस्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड मैं लेके चल रहा हूँ। मोस्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड्स आर मीरोक्राइन। Our salivary glands are merocrine. Our tear glands are merocrine. Our intestinal glands are merocrine. Intestinal glands, they are also merocrine. So majority of sweat gland, then आपकी salivary gland, then tear gland, then intestinal gland, और तो और जो गॉबलेट सेल भी पढ़ते हो आप, वो भी अपना सिक्रेशन बाय डिफ्यूजन ही करती है। तो एक और एग्जांपल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, म्यूकस ग्लैंड और लेट्स कॉल दैट गॉबलेट सेल। वो भी सिक्रेशन कैसे डिस्चार्ज करता था अपना, बाय प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ये सारी की सारी होती है बेटा मीरोक्राइन ग्लैंड, और इन्हीं को बोलते हैं एक्राइन ग्लैंड। इन्हीं का दूसरा नाम होता है एक्राइन ग्लैंड। इज दैट क्लियर अप टू हियर? प्लीज से यस और नो। ऐसी ग्लैंड जो अपने सिक्रेशन को बाय सिंपल डिफ्यूजन डिस्चार्ज कर रही है और कोई भी पार्ट ऑफ सेल लॉस नहीं होता है, उन ग्लैंड को बोलते हैं मीरोक्राइन ग्लैंड और एक्राइन ग्लैंड। अब दूसरी ग्लैंड मैं बता रहा हूँ आपको, एपोक्राइन। देखो एपोक्राइन का मतलब क्या होता है कि जो भी सिक्रेटरी प्रोडक्ट है पहले वो एक्यूमुलेट होता चला जाएगा एपिकल पार्ट में, और बाद में वो जो एपिकल पार्ट है वो ब्रेक ऑफ हो जाता है फ्रॉम द सेल एंड इट इज डिस्चार्ज एज सिक्रेशन। secretory product keep accumulating in the apical part, and later this apical part is disintegrated and discharged as secretion. Disintegrated and discharged as secretion. आया बच्चों समझ? तो एपोक्राइन ग्लैंड के अंदर जो भी उनका सिक्रेटरी मटेरियल है पहले वो एक्यूमुलेट होता रहता है एपिकल पार्ट में, और बाद में जो एपिकल पार्ट है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है एंड इट डिस्चार्ज एज सिक्रेशन। इसका भी एक डायग्राम बना के ऐसे दिखा देता हूँ। लेट मी मेक ए रिप्रेजेंटेशन हियर। ये आपके पास एक इंटैक्ट सेल है, ये उसका न्यूक्लियस, ये
जो भी वैक्यूल्स वगैरह है, और यहाँ पर खूब सारा सिक्रेटरी पार्ट एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, राइट। नेक्स्ट अगला स्टेज क्या होगा इसी सेल का, जो भी एपिकल पार्ट है इट वुड बिकम समथिंग लाइक दिस नाउ, द एपिकल पार्ट ऑफ सेल इट वुड बिकम समथिंग लाइक दिस। जो इंटैक्ट था वो इंटैक्ट नहीं बचा है, अब थोड़ा लूज होना शुरू हो गया है, माने इट इज गेटिंग रेडी टू गेट डिसइंटीग्रेट। देन नेक्स्ट स्टेज, जो भी एपिकल पार्ट है along with secretion it would be looking like this. Now it is going to break, और फोर्थ कंडीशन में लेट मी शो यू, ये जो एपिकल पार्ट है ये पूरा डिसइंटीग्रेट ही हो गया। इन फोर्थ कंडीशन लेट से आपके पास जो बचा हुआ सेल है वो कुछ ऐसा बचा है, न्यूक्लियस मत कर दें डिसइंटीग्रेट, और जो भी उसका एपिकल पार्ट था इट हैज बीन लॉस्ट एज ए सिक्रेशन। तो देखो मीरोकाइन का पार्ट ग्लैंड में कोई भी पार्ट ऑफ सेल लूज नहीं हुआ था, यहाँ पर एपिकल पार्ट ऑफ सेल इज लॉस्ट एज ए सिक्रेशन, एपिकल पार्ट ऑफ सेल इज लॉस्ट एज ए सिक्रेशन, इसलिए इसको बोलते हैं एपोक्राइन ग्लैंड। So those glands in which apical part is lost as a secretion we call that apocrine gland. Example बता दो apocrine gland के। जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं हमारी मैमल्स के अंदर, जो मेमोरी ग्लैंड हैं उसमें जो मिल्क सिक्रेशन है वो एपोक्राइन एक तरह से, मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ मैमल है एपोक्राइन। और जो बची हुई स्वेट ग्लैंड है, देखो जो भी एक्सिलरी स्वेट ग्लैंड होती है, ऐसी स्वेट ग्लैंड जो आर्मपिट के नीचे है, आर्मपिट समझते हो, आर्मपिट के नीचे जितनी भी स्वेट ग्लैंड है वो कैसी होती है, वो आपकी एपोक्राइन होती है। एग्जाम्पल मैं लिखूंगा यहाँ पर, एग्जाम्पल्स वुड बी मेमोरी ग्लैंड एंड axillary sweat gland, and where axillary sweat glands are located, they are located below armpit. तो बच्चे अगर कंप्लीट सेल जो इंटैक्ट है, डिफ्यूजन से सिक्रेशन जा रहा है तो मीरोक्राइन ग्लैंड, एपिकल पार्ट लॉस्ट हो जाता है तो एपोक्राइन ग्लैंड, और अगर कंप्लीट सेल ही लॉस्ट हो जाती है सिक्रेशन तो उसको बोलेंगे होलोक्राइन ग्लैंड। जो थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, थर्ड टाइप पढ़ेंगे, दैट वुड बी होलोक्राइन ग्लैंड। तो होलो का मतलब होता है कंप्लीट, राइट, और क्राइन का मतलब होता है, देखो क्राइन का मतलब यहाँ पे रिलीज होता है, जब बायोलॉजी की बात करते हैं क्राइनिंग और क्राइन इज टू रिलीज एंटायर सेल आफ्टर accumulating secretory material is lost as a part of secretion. समझ में आ रहा है कि कंप्लीट सेल लॉस्ट हो जाता है बच्चों, तो उसको हम होलोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। तो अगर उसका भी मैं रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं यहाँ पर, रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा कि लेट से आपके पास ये एक सेल है, these are certain cells which are intact right now. अब इनके अंदर ना एक्यूमुलेट होता जा रहा है, इनके अंदर आपका जो भी सिक्रेटरी मटेरियल है वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है, एंड वंस इनफ सिक्रेटरी मटेरियल इज एक्यूमुलेटेड, द कंप्लीट सेल इज लॉस्ट एज ए पार्ट ऑफ सिक्रेशन। तो जब कंप्लीट सेल लॉस हो जाए, कंप्लीट ग्लैंडुलर सेल ही डिस्चार्ज हो जाए सिक्रेशन, उसको बोलते हैं बेटा होलोक्राइन। एपिकल पार्ट डिस्चार्ज हो तो बोलते हैं एपोक्राइन, और सिंपल डिफ्यूजन से अगर डिस्चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं मीरोक्राइन। होलोक्राइन ग्लैंड की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, होलोक्राइन ग्लैंड का क्लासिकल एग्जांपल होता है आपका सीबेशियस ग्लैंड, और आई विल से ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड। आपकी आइज के अंदर जो मिबोमियन ग्लैंड और ग्लैंड ऑफ जीस होती है वो भी होलोक्राइन होती है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल मेंशन करूंगा, एग्जांपल इज सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड इज द अदर नेम ऑफ ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड, सीबेशियस और ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड। सेकंड आपके पास होता है मिबोमियन ग्लैंड। मिबोमियन ग्लैंड जो होती है बेटा,
वो आइज के अंदर होती है, अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जब आई पढ़ेंगे तो इनके बारे में जिक्र करेंगे। और ग्लैंड ऑफ जीस भी आइज के अंदर होती है, ग्लैंड ऑफ जीस। जब आप एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ आई पढ़ेंगे, कंजक्टिविया वगैरह जब पढ़ोगे, तो आईलिड्स के कॉर्नर पर या आईलिड्स के साथ आपकी दो तरह की ग्लैंड मिलेगी, वन इज मोबेलियन ग्लैंड एंड सेकंड इज ग्लैंड ऑफ जीस। और ये दोनों कहाँ पर होती है? ग्लैंड ऑफ आई नहीं, ग्लैंड ऑफ जीस, ZEIS। So meibomian gland and gland of G is present in our eye. They are also example of holocrine gland. Oil secreting gland is classical example of holocrine gland. तो बच्चों दूसरा क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ग्लैंड कुड बी मीनोक्राइन, ग्लैंड कुड बी एपोक्राइन एंड ग्लैंड कुड बी होलोक्राइन। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। एपोक्राइन मेमोरी ग्लैंड बहुत बार पूछा गया है। एपोक्राइन मेमोरी ग्लैंड इज एग्जांपल ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछेंगे, तो प्लीज इसको याद रखिए। चलिए ठीक है बच्चों, फिर एक और क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जो क्लासिफिकेशन अपनी एनसीईआरटी में दिया है, बहुत बेसिक सा है, अब उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई डिपेंडिंग अपॉन द सेक्रेटरी सेल ग्लैंड जो है वो यूनिसेलुलर होती है, मल्टी सेलुलर होती है। लेट अस नाउ डिस्कस अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड डिपेंडिंग अपॉन द number of cells which are involved in secretion. Classification of gland depending upon number of cells which are involved in secretion. So classification of gland depending upon the number of cells which are involved. Third classification, there is two more classification left only. Fourth classification will be little bit lengthy and detailed. Third classification, and that classification would be upon the basis of number of cells. Classification on basis of number of cells. There is no fun in telling actually कि भाई अगर आपके पास सिंगल सेल ही एज ए ग्लैंड काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड। या मैं कहूँ अगर आपके पास आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल हैं, अगर आपके पास आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल हैं, आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल हैं, तो आप उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर। तो अगर आपके पास क्लस्टर ऑफ सेल है जो एज सिक्रेशन काम कर रही हैं, तो उनको बोलते हैं मल्टीसेलुलर। दैट इज व्हाट वी कॉल हैविंग क्लस्टर ऑफ सेल्स। तो इसमें तो मैं डायग्राम बना के आपको चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डायग्राम वगैरह पूछ लिया जाता है यहाँ से ना कई बार डायग्राम वगैरह पूछ लिया जाता है कि बताओ ये कौन सी ग्लैंड है। तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। यूनिसेलुलर ग्लैंड का डायग्राम कैसे होगा? लेट्स से दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन हियर, और उसके ऊपर खूब सारे आपके पास में कुछ ये कॉलमनर सेल्स हैं। लेट्स से दीज आर द कॉलमनर सेल्स व्हिच आर लोकेटेड ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इन्हीं कॉलमनर सेल में से कोई एक सेल मॉडिफाई हो जाती है, इन्हीं कॉलमनर सेल में से कोई एक सेल मॉडिफाई हो जाती है, और मॉडिफाई होकर कुछ ऐसी बन जाएगी। तो ये कौन सी ग्लैंड नजर आ रही है आपको यहाँ पर? मॉडिफाइड सेल को मैं रेड में दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक सेल मॉडिफाई हो गई है, ऊपर गॉबलेट जैसा कुछ आ गया है, एंड कंप्लीट सेल इज मॉडिफाइड एंड नाउ इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर व्हाट? इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशन। बाकी की जो सेल्स हैं उनके अंदर माइक्रोविलाई वगैरह हो सकती है, तो वो अपने अलग अलग फंक्शन कर रही होंगी। माइक्रोविलाई है तो नो फन इन टेलिंग कि वो एब्जॉर्प्शन कर रही है। तो लेट्स से दीस सेल्स आर हैविंग माइक्रोविलाई हियर। Is that clear? These cells are having microvilli. This cell can also modify. This cell can also modify. आप देख रहे होंगे डायग्राम में यहाँ पर सिंगल सेल इंडिविजुअल या आइसोलेटेड सेल ही सिक्रेटरी है, ग्रुप ऑफ सेल सिक्रेटरी नहीं है, बीच में नॉन सिक्रेटरी सेल्स भी आ रही हैं। तो ये जो सेल्स होती हैं जो आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल होती हैं, इनको बोलते हैं बेटा यूनिसेलुलर ग्लैंड। जो आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल है जिनके सिक्रेशन बाय डिफ्यूजन ही जा रहे हैं बाहर अभी, तो इनको बोल देते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड। तो इफ आई लेबल इट हियर, दिस हियर, दीज आर व्हाट? दीज आर यूनिसेलुलर ग्लैंड। यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सेल सिक्रेशन नहीं कर रही है, आइसोलेटेड सेल सिक्रेशन कर रही है। इतनी चीज तो समझ में आती है। इसमें माइक्रोविलाई बना ही दो, इसको क्यों बेचारे को छोड़ दिया? अब आपको याद रखना है यूनिसेलुलर ग्लैंड के दो क्लासिकल एग्जाम्पल जो हमेशा पूछे जाते हैं।
एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड, पहले तो याद रखें गॉबलेट सेल, दीज आर क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड, और दूसरा एग्जाम्पल याद रखें पेनी सेल ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड, टू क्लासिकल एग्जाम्पल। अगर यूनिसेलुलर ग्लैंड के एग्जाम्पल्स की बात करूं, एग्जाम्पल्स वन इज गॉबलेट सेल और म्यूकोसिक्रेटिंग सेल, और जो सेकंड है ये थोड़ा सा भूल जाने वाला है, पेनिस सेल ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो पेनिस सेल जो होती हैं, याद रखना, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, दे आर एन एग्जाम्पल ऑफ, पेनिस सेल आर एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड, पेनिस सेल आर एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड। एक डायग्राम तो ये हो गया। फिर दूसरा डायग्राम मैं बनाता हूँ क्लस्टर ऑफ सेल का, जो मल्टीसेलुलर सेल्स है, क्लस्टर ऑफ सेल जो काम कर रही है आप। अच्छा, आसपास में यहाँ पर ना कनेक्टिव टिश्यू को मैं शो नहीं करता हूँ। एक क्लस्टर ऑफ सेल है, और एक क्लस्टर ऑफ सेल क्या काम करता होगा, इट वुड बी वर्किंग एज सिक्रेटरी सेल। दिस क्लस्टर ऑफ सेल इट वुड बी वर्किंग एज सिक्रेटरी सेल। मैं सिक्रेटरी सेल से क्लस्टर बना देता हूँ। लेट्स से दीज आर द सेल्स हियर, क्लस्टर ऑफ सेल्स हियर व्हिच हैज बीन वर्किंग एज सिक्रेटरी सेल्स। तो जब क्लस्टर ऑफ सेल होगा तो ये किस ग्लैंड का डायग्राम नजर आ रहा है? दिस इज द डायग्राम ऑफ यूनिसेल, दिस इज द डायग्राम ऑफ मल्टीसेलुलर ग्लैंड, दिस इज डायग्राम ऑफ मल्टीसेलुलर ग्लैंड। ठीक है बेटा, और यहाँ पर लेट से बीच में कुछ आपकी ऐसी भी सेल्स हैं जो सिक्रेटरी नहीं है। There are also certain cells which are not secretory here, but this जो रेड में नजर आया है वो क्लस्टर ऑफ सेल secretory in nature। इनके जितने भी secretions होंगे they would be going like this। ये रेड में दिखाया चाहिए secretions, all the secretions they would be discharged from here like this। Does it make sense बच्चों? तो आसपास में यहाँ पर क्या है ये? This all is connected tissue। आफ्टर बेसमेंट मेम्ब्रेन दिस सेल शुड बी कनेक्टिव टिश्यू, और कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी सेल भी यहाँ पे नजर आ जाएंगे जो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो खैर सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन करना है यूनिसेलुलर ग्लैंड और मल्टीसेलुलर ग्लैंड के डायग्राम का। जब ये डायग्राम आता है तो आप इसको मल्टीसेलुलर कंसिडर कर लेते हैं, ऐसी गलती मत करना है। जब क्लस्टर ऑफ सेल्स सिक्रेशन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीसेलुलर ग्लैंड, और जब सिंगल सेल कर रही है तो यूनिसेलुलर ग्लैंड। मल्टीसेलुलर ग्लैंड के एग्जांपल जैसे आपकी स्लैवी ग्लैंड मल्टीसेलुलर है, स्वेट ग्लैंड मल्टीसेलुलर, जितनी भी आप इन दो के अलावा ग्लैंड पढ़ोगे वो सारी मल्टीसेलुलर होगी। मल्टीसेलुलर ग्लैंड में एग्जांपल में यहाँ पर भी स्लैवी ग्लैंड ही लिखे जा रहे हैं। ठीक है, राइट। अच्छा, एक और चीज इट्स वर्थ मेंशनिंग हियर, जाइमोजेनिक ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? जाइमोजेनिक ग्रेन्यूल्स, देखो जितने भी सिक्रेटरी सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव सिक्रेटरी मटेरियल विद इन सिक्रेटरी सेल इज जाइमोजेनिक ग्रेन्यूल्स। ठीक है बेटा, सेल के अंदर जो भी रिलीज होने से पहले इनएक्टिव फॉर्म में है वो क्या है, उसको जाइमोजेन कहते हैं, जाइमोजेनिक ग्रेन्यूल। तो बच्चे ये हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। एंड नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन, लास्ट फोर्थ क्लासिफिकेशन, आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। आसान इसलिए है क्योंकि अगर आप इनके नाम की लेबल, नाम का इनका नोमेनक्लेचर करना अगर आप सीख लोगे, आपको चीजें समझ में आ जाएगी, तो ये बड़ा आसान सा है। और जब इसके एग्जाम्पल्स वगैरह याद करते हैं तो बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम्पल्स में, क्योंकि कई सारे आपको जो है क्लासिफिकेशन पढ़ने होंगे, इसमें कई सारे टाइप्स पढ़ने होंगे, तो ये मुश्किल सा भी हो जाता है। बट आई बिलीव आप बच्चे बड़े शार्प हैं, आपकी मेमोरी बहुत शार्प है, आप इसको आराम से याद रखेंगे। तो लास्ट क्लासिफिकेशन और लास्ट पार्ट ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज क्लासिफिकेशन। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेटरी डक्ट एंड सिक्रेटरी पोर्शन। क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ secretory duct
on basis of duct and secretory portion. सुनो, पहले बेसिक सुन लो, इसकी बेसिक क्या है क्लासिफिकेशन की जो बुनियाद है, उसके बाद आप क्लासिफिकेशन पढ़ते जाओ। किसी भी एक ग्लैंड में एक्सोक्राइन ग्लैंड क्लासिफिकेशन पहले तो ये बता दो कि डक्ट की बात हो रही है। एक डक्ट होती है और दूसरा उसके पास, अगर मैं मल्टीसेलर का एग्जांपल लूं, क्लस्टर ऑफ सेल्स है और ये क्लस्टर ऑफ सेल्स क्या कर रहे हैं बेटा, सिक्रेशन कर रहे हैं। तो हर एक ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है डक्ट और दूसरा पार्ट होता है सिक्रेटरी पोर्शन। दूसरा पार्ट होता है सिक्रेटरी पोर्शन। नाउ अटेंशन प्लीज, ये चीज ध्यान से सुनो। अगर डक्ट अनब्रांच्ड है, अगर डक्ट अनब्रांच्ड है तो ग्लैंड को बोलते हैं सिंपल। अगर डक्ट ब्रांच हो गई, अगर डक्ट के अंदर ब्रांचिंग आ गई, डक्ट इज समथिंग लाइक दिस, इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचिंग्स हो रही हैं, इस वाले, ये सारा डक्ट वाला पार्ट है, जैसे क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं बता रहा। तो डक्ट अगर अनब्रांच है तो सिंपल, डक्ट अगर ब्रांच है तो कंपाउंड। ग्लैंड्स में जब क्लासिफिकेशन करते हैं, अगर डक्ट ब्रांच है, कंपाउंड में होती है ब्रांच डक्ट और सिंपल में होती है अनब्रांच डक्ट। सिंपल इज अनब्रांच। तो पहला तो ये हो गया आपके पास सिंपल और कंपाउंड के बारे में। अब जिस तरह का उसके पास सिक्रेटरी पोर्शन होगा बच्चों, वैसा ही उसको नाम दे देंगे। जिस तरीके का, जिस शेप का सिक्रेटरी पोर्शन होगा, वैसा ही उसको नाम दे देंगे। अब चलो आप हेल्प करना, नाम नोमेनक्लेचर में, इनका नामकरण करने में आप हेल्प करना। मैं डायग्राम बनाता जाऊंगा और एग्जाम्पल बताता जाऊंगा। पहले सिंपल के एग्जाम्पल पढ़ देते हैं। पहले हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम। राइट, नाउ यू टेल मी, डक्ट हमने रेड कलर से लिया था, मैं ग्लैंड बना रहा हूं यहाँ पर, आप उसका नाम मुझे बताना। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज डक्ट। अनब्रांच में तो कैसी हो गई, सिंपल हो गई सर। और ये उसका सिक्रेटरी पोर्शन, द सिक्रेटरी पोर्शन इज लाइक दिस। तो कैसा दिख रहा है आपको, स्ट्रेट दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट दिख रहा है सर। ट्यूबुलर दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, लाइक ए ट्यूब दिख रहा है। तो ऐसी ग्लैंड जिनका शेप कुछ ऐसा है, जिनका सिक्रेटरी पोर्शन का शेप ऐसा है और डक्ट का शेप वैसा है, कैसा है सर, ऐसा है। ऐसी ग्लैंड का नाम आप अगर जब नोमेनक्लेचर करेंगे, व्हाट शुड बी द नेम हियर, द नेम हियर शुड बी सिंपल। तो मैं आगे लिख रहा हूं सिंपल, दैट शुड बी स्ट्रेट ट्यूबुलर। द नेम हियर शुड बी सिंपल स्ट्रेट ट्यूबुलर ग्लैंड। I guess this makes a very simple sense. सिंपल क्यों बोला, क्योंकि ब्रांच, डक्ट ब्रांच नहीं है, ब्रांच है। स्ट्रेट ट्यूबुलर क्यों बोला, क्योंकि सिक्रेटरी पोर्शन ऐसा है नजर होने में। ठीक है बच्चे, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। सिंपल स्ट्रेट ट्यूबुलर ग्लैंड कहाँ होती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड में कुछ स्पेशल सेल आप पढ़ोगे जिनको बोलेंगे क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन, इन क्रिप्स ऑफ लिबरकुन में ही होता है वो पेनिस सेल। इनका एक पार्ट होता है कहीं जाके, राइट, इन इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्रिप्स ऑफ लिबरकुन इन इंटेस्टाइनल ग्लैंड, उनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, सिक्रेटरी पोर्शन की शेप स्ट्रेट ट्यूबुलर होती है और डक्ट सिंपल रहेगी तो ऐसा होगा। तो सिंपल में फर्स्ट टाइप क्या होगा बेटा, स्ट्रेट ट्यूबुलर। क्लासिकल एग्जांपल इज क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन। ठीक है, सेकंड टाइप सिंपल में ही टाइप नंबर 2। अब आप ना मुझे इसका नाम बताना, मैं बना देता हूँ एक क्वेश्चन, नाम आप बताना इसका, ठीक है। आई बिलीव के यू विल बी आंसरिंग इट। इट इज सिंपल आई गेस राइट नाउ। यस सर, एज वी आर सिंपल, दिस इज आल्सो सिंपल, राइट। दिस इज लाइक a tube which is something like this. A tube which is something like this. Come on. What I am doing? A tube
which is something like this. कैसा नजर आ रहा है ये? ट्यूबुलर है पर स्ट्रेट नहीं है ना. जो भी सिक्रेटरी पोर्शन है दैट इज ट्यूबुलर बट इट इज नॉट स्ट्रेट. कैसा है ये सर? हमें नजर आ रहा है कॉइल. तो क्या नाम हो जाएगा इस ग्लैंड का? सिंपल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनब्रांच्ड डक्ट, ट्यूबुलर, कॉइल और सिंपल कॉइल ट्यूबुलर. द नेम ऑफ दिस ग्लैंड, क्योंकि इसका सिक्रेटरी पोर्शन जो है वो कॉइल ट्यूबुलर है, इसका नाम हो जाएगा सिंपल कॉइल ट्यूबुलर ग्लैंड. इजी टू रिमेम्बर, नोमेनक्लेचर इज वेरी इजी. अगर आपको ये इसका स्ट्रक्चर याद रह जाता है, इस ग्लैंड का नाम होगा सिंपल कॉइल ट्यूबुलर ग्लैंड. इज दैट क्लियर? प्लीज सही है सॉल्व हो. कहाँ होती है सिंपल कॉइल ट्यूबुलर ग्लैंड? हमारे जितने भी स्वेट ग्लैंड होते हैं सिंपल कॉइल ट्यूबुलर ही होते हैं. एग्जाम्पल हियर, एग्जाम्पल ऑफ सिंपल कॉइल ट्यूबुलर इज स्वेट ग्लैंड. एग्जाम्पल हियर इज आवर स्वेट ग्लैंड्स आर सिंपल कॉइल ट्यूबुलर. दैट्स फन टू नेम, इजंट दैट इंडीड? चलो तीसरे का नाम रखते हैं. आप इसका नाम बताइए. मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं. अभी तो सिंपल ही बनाए जा रहे हैं. दिस इज अगेन सिंपल. और इसका जो सिक्रेटरी पोर्शन होता है वो कुछ ऐसा होता है. यस, बड़े अजीब अजीब से आपने नाम इसको दिए होंगे. थैंकफुल, आई एम थैंकफुल कि मैं नहीं सुन पा रहा हूँ आप क्या क्या कह रहे हैं, बट आई एम वेरी श्योर कि कुछ अजीब अजीब से नाम आप इसको दे रहे हैं. व्हाट इज द नेम हियर? ये लगता है लाइक ए सैक. सैक समझते हो? या फिर लाइक ए एल्वोलाई. ये जो सिक्रेटरी पोर्शन है कैसा है? लाइक ए एल्वोलाई. तो इसका नाम हो जाएगा बेटा थर्ड ग्लैंड का, इट वुड बी सिंपल एल्वुलर और सिंपल सेक्युलर. ठीक है बच्चों, अगर सिक्रेटरी पोर्शन लाइक ए सैक हो तो क्या बोलेंगे? सिंपल एल्वुलर और सिंपल सेक्युलर. ये ग्लैंड होती है ह्यूमंस के अंदर नहीं होती है इन जनरल. ऐसी ग्लैंड मिलती है आपको इन द क्यूटेनियस स्किन एपिथेलियम ऑफ फ्रॉग या म्यूकस ग्लैंड ऑफ फ्रॉग या जो पॉइजन ग्लैंड ऑफ टोड होती है. इसका एग्जांपल दे आर फाउंड इन म्यूकस ग्लैंड, इन्हीं को बोलेंगे क्यूटेनियस ग्लैंड ऑफ फ्रॉग, और लेट्स कॉल दैट पॉइजनस ग्लैंड ऑफ टोड. इनके अंदर मिलता है बेटा आपको ये सिंपल एल्वुलर और सिंपल सेक्युलर एपिथेलियम. ठीक है बच्चों, अभी और सिंपल ही पढ़ लेते हैं, फिर बाद में कंपाउंड पढ़ेंगे. एक दो और मैं सिंपल बना के आपको दिखा देता हूँ, फिर बाद में आपको कंपाउंड बना के दिखाऊंगा. नेक्स्ट, अब इसको देखो. मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, नाम आप देना इसको. एज आई टोल्ड यू दिस, अभी सिंपल ही पढ़ा रहा हूं. अब इसमें जो सिक्रेटरी पोर्शन होगा इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. कैन यू नेम इट? सर लग तो ये ट्यूब के जैसा रहा है. शाबाश, गो अहेड. और ट्यूब्स की ना ब्रांचिंग हो रही है सर. दैट्स वेरी गुड. व्हाट शुड बी द नेम? इट शुड बी सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर. ट्यूब्स की क्योंकि ब्रांचिंग नजर आ गई आपको यहाँ पे, द नेम शुड बी सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर. इज दैट क्लियर? आई गेस इट्स वेरी इजी. अगर शेप वगैरह आपको याद रह जाता है तो उसको नाम देना तो इजी है, बट एज आई टोल्ड यू एग्जाम्पल्स वगैरह याद करना थोड़ा मुश्किल रहेगा. तो जो फोर्थ वाला है दैट इज सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर. अब ये सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड्स मिलते कहाँ हैं? हमारे स्टमक के जितने भी ग्लैंड होते हैं जिनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड. गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टमक की सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर. एग्जाम्पल, गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टमक इज सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर. ऑलराइट, एक और लिख लेते हैं, एक और ग्लैंड बना लेते हैं सिंपल में, फिर कुछ वैसा ही. इसका नाम तो आई एम डैम श्योर तुम आराम से बता दोगे. ऑलराइट,
सिंपल हो गया सर। व्हाट शुड बी द नेम हियर? सिंपल ब्रांच्ड एल्वोलर, या फिर इसको बोलो सिंपल ब्रांच्ड सेक्युलर। इज दैट क्लियर? प्लीज से यस और नो। राइट राइट राइट। फोर्थ और फिफ्थ टाइप इट वुड बी सिंपल branched alveolar, or let's call that simple branched secular। अब इनकी लोकेशंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, जितने भी हमारे ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड होते हैं वो सारे ही सिंपल ब्रांच सेक्युलर है। एग्जांपल सीबेशियस ग्लैंड और ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड। नाउ एक क्विक रिवीजन, उसके बाद कंपाउंड की तरफ चलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन डक्ट ब्रांच है अनब्रांच्ड है, हम उसको बोलते हैं सिंपल और कंपाउंड। अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे अनब्रांच डक्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो अनब्रांच डक्ट की वजह से सिंपल नाम आ गया, और सिक्रेटरी पोर्शन का शेप जैसा है वैसा ही उसके आगे नेम ऐड कर देंगे। ट्यूबुलर, स्ट्रेट ट्यूबुलर, कॉइल ट्यूबुलर, एल्वोलर और सेक्युलर, ब्रांच ट्यूबुलर और ब्रांच एल्वोलर। और फिर उनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, एग्जाम्पल्स वगैरह पूछ लेते हैं। आर वी डन अप टू हियर? प्लीज से यस और नो। Take a screenshot if you have not completed your note, otherwise I am like rubbing you। ठीक है, अब मैं कुछ और डायग्राम बना के दिखा दूंगा आपको कंपाउंड एपिथेलियम। अब हम वो केस पढ़ेंगे जब हमारी जो डक्ट है वो कैसी हो गई बच्चे, वो ब्रांच हो गई। अब डक्ट अनब्रांच में रहकर ब्रांच हो गई तो उसके लिए वर्ड यूज कर लेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। एंड नाउ लेट अस लर्न 2, 3, 4 एग्जांपल ऑफ दिस compound epithelium, and then the glandular epithelium would be completed, right? Almost epithelial tissue हमने सारा पढ़ लिया है, बस कल का लेक्चर बचा है। जंक्शंस वगैरह इतने डिटेल वाली चीज़ नहीं है, तो आप लोग अपनी तरफ से तैयार रहें उसमें। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं बेटा कंपाउंड एपिथेलियम ग्लैंड्स के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई अबाउट कंपाउंड ग्लैंड्स। तो कंपाउंड ग्लैंड्स की डक्ट कैसी बताई थी आपको? सर ब्रांच बताई। अब मैं पहले कंपाउंड ग्लैंड के बारे में कट स्ट्रक्चर बना देता हूँ, नाम तो तुम लोग ही बताओगे। अभी ये टेक्निक आ गया कि तुम लोगों की मन की आवाज़ मेरे तक पहुँचने लगी है, राइट? ये डक्ट है, क्या ये ब्रांच हो गई है? यस सर, बिल्कुल ब्रांच हो गई। तो कंपाउंड ग्लैंड हो गया नाम इसका? यस सर, बिल्कुल हो गया। ओके, मैं कई बार अपने आप से बात करता हूँ। अब इसका जो सिक्रेटरी पोर्शन है, इसका सिक्रेटरी पोर्शन मैं बना देता हूँ कुछ ऐसे करके। नाम आप बताएंगे। This here is the secretory portion. How it look like, by the way? Do it look tubular? Answer is yes. Do it look like a tube? Yes. And is that branched? Yes. Tube ही मान के चले इसको, right? I'm so tired. Anyways, just 5 minutes more. What should be the name? The name of this gland should be compound branch tubular, simply called it compound tubular gland. The name of this gland should be compound tubular gland. Is that clear? The name is compound tubular gland। लोकेशन वगैरह इसकी पूछी जाती है कि भाई कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड कहाँ होती है। तो आप याद रखना, हमारे ना जो सबम्यूकोसा होता है ड्यूडेनम पार्ट का, उसमें एक स्पेशल ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं ब्रूनस ग्लैंड। जो हमारे ब्रूनर ग्लैंड है वो कंपाउंड ट्यूबुलर है। प्रोटोथीरियम की जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो कंपाउंड ट्यूबुलर होती है, और जो यूथेरियंस की इनएक्टिव फॉर्म में मेमोरी ग्लैंड होती है वो कंपाउंड ट्यूबुलर होती है। तो एग्जैक्टली एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इज Brunner's gland in some mucosa of duodenum, the compound tubular. Mammary gland of prototherium and inactive mammary gland
ऑफ मेटाथेरियम। ये सब कैसी ग्लैंड्स हैं बच्चे? ये सब कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट फिर एक डायग्राम बनाता हूं, उसमें भी आपका थिंग वुड बी गोइंग सेम। I told you this thing is branched, so no fun in tally. And from here, you will be having that secretory part like this. What should be the name here? Compound, yes please, alveolar. The name of this gland should be compound alveolar or compound saccular. Second is compound alveolar, or let's call that compound saccular gland. ठीक है बच्चों, कंपाउंड एल्वुलर और कंपाउंड सेक्युलर ग्लैंड कहाँ होती है? हमारी दो स्लाइवरी ग्लैंड, एक वो जो बीनीथ द टंग है जिसको हम सबलिंगुअल कहते हैं, और दूसरा वो जो सब मैक्सिलरी है। ये दोनों कैसी होती हैं? कंपाउंड एल्वुलर होती है। एग्जाम्पल सबलिंगुअल एंड देखो सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी एक ही ग्लैंड का नाम होता है। सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी, ये एक ही स्लाइवरी ग्लैंड को कहते हैं। ठीक है, पेयर्ड एक्चुअली। सबलिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी स्लाइवरी ग्लैंड, ये जो ग्लैंड्स होती हैं इनका शेप कैसा होता है बेटे? सिक्रेटरी पोर्शन का डक्ट ब्रांच होती है तो कंपाउंड, और वो एल्वुलर या सेक्युलर होती है। सो हमें दो तरह की कंपाउंड पढ़ ली, एक पढ़ी आपने कंपाउंड एल्वुलर या कंपाउंड सेक्युलर, और दूसरी पढ़ी आपने कंपाउंड ट्यूबुलर। जो लास्ट पार्ट है कंपाउंड ग्लैंड का, उसका नाम बताइएगा। द लास्ट पार्ट इज इट वुड बी लाइक दिस। लेट मी मेक इट। लास्ट है ये फाइन, then they are branchings, that's great. Then इसका जो secretory portion होगा it would be like this. समझ लिया बात बच्चों? जो secretory portion है वो कुछ ऐसा करते हैं। secretory portion में कुछ पार्ट ट्यूबुलर है और कुछ पार्ट सेक्युलर है। तो क्या नाम देंगे आप इसको? कंपाउंड ट्यूबेलो सेक्युलर और कंपाउंड ट्यूबेलो एल्वुलर ग्लैंड। इज दैट क्लियर? आई रिपीट, सिक्रेटरी पोर्शन का कुछ पार्ट ट्यूबुलर है और कुछ पार्ट सेक्युलर है। तो इसका नाम हो गया बच्चे कंपाउंड। इट कम फ्रॉम द डक्ट ट्यूबेलो और ट्यूबुलर, ट्यूबेलो एल्वुलर और कंपाउंड ट्यूबेलो सेक्युलर। आया समझने में? ट्यूबेलो एल्वुलर और ट्यूबेलो सेक्युलर। अब ये ग्लैंड्स कहाँ होती हैं? जो आपकी स्लाइवरी ग्लैंड बच गई है, आपने पढ़ा 3 पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड है, 1 पेयर ऑफ सबलिंगुअल, 1 पेयर ऑफ सबमैक्युलर और सबमैंडिबुलर एंड 1 पेयर ऑफ पैरोटिड। हमारी जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो कैसी होती है बेटा? कंपाउंड ट्यूबेलो एल्वुलर। हमारे जो पैनक्रियाज होते हैं वो कैसे होते हैं? कंपाउंड ट्यूबेलो एल्वुलर। एक्टिव मेमोरी ग्लैंड होती है कंपाउंड ट्यूबेलो एल्वुलर, और कुछ और ग्लैंड, काउपर ग्लैंड एंड बारथोलिन ग्लैंड। तो जब लास्ट वाला पार्ट ये बताओ, एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, एक्टिव मेमोरी ग्लैंड ऑफ यूथेरियन, एक्टिव मेमोरी ग्लैंड ऑफ ह्यूमन में लिख दूं तो चलेगा काम? वैसे यूथेरियंस की बात कर रहा हूं मैं। पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड, ऑलराइट, पेनक्रियाज, बारथोलिन ग्लैंड। जो बारथोलिन ग्लैंड होती है बेटा वो accessory sexual gland है ह्यूमन फीमेल में। These are the accessory sexual gland present in human female. And
जो काउपर्स ग्लैंड होती है इनको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं. दीज आर एसेसरी सेक्सुअल ग्लैंड इन मेल. तो सेक्स ग्लैंड इन मेल, सेक्स ग्लैंड इन फीमेल, पेनक्रियास, पैरोटिड साइज ग्लैंड, एक्टिव मेमोरी ग्लैंड ऑफ ह्यूमन, ये सारे काहे के एग्जांपल हो गए. दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड ग्लैंड. एंड हियर वी कंप्लीट अवर टॉपिक ग्लैंडुलर एपिथेलियम. तो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू वो मॉडिफाइड एपिथेलियम होता है जिसके अंदर कुछ कोलमनर क्यूबोइडल सेल सिक्रेटरी हो जाते हैं. फिर हमने 4 अलग अलग क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे कि भाई डक्ट है तो एक्सोक्राइन, डक्ट नहीं है तो एंडोक्राइन, और मिक्स्ड है तो होलोक्राइन. फिर आपने पढ़ा होगा कि भाई अगर सिंपल डिफ्यूजन से निकल रहा है सिक्रेशन तो मीरोक्राइन, एपिकल पार्ट लॉस्ट हो रहा है तो एपोक्राइन, और अगर कंप्लीट सेल लॉस्ट हो रही तो होलोक्राइन. फिर यूनिसेलुलर ग्लैंड एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड, और बाद में डिपेंडिंग अपॉन डक्ट एंड सिक्रेटरी पोर्शन द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड. डक्ट अगर अनब्रांच है तो सिंपल, और ब्रांच है तो कंपाउंड, और जैसा उनका सिक्रेटरी पोर्शन होगा वैसा उनको नाम देगा. ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. हियर वी कंप्लीट ग्लैंडुलर एपिथेलियम. प्लीज क्विक रिवीजन करते चले जाइए. वीडियोस नहीं देखें तो देख लो. कुछ बच्चे नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं. हमें पता चल रहा है कि बच्चे कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं. तो डेट्स अपॉन यू. आप अपने घर वालों का पैसा कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं या अपनी ज़िंदगी का टाइम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा. थैंक यू. द क्लास इज